صاحب کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آئیے ان کا استقبال کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شہدائے کرب و بلا، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، بڑھ جان سے ٹھیک آ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس۔ The most honorable and respectable and my dear ulama kiram and shura izam, my people and my mother and sister and all the haziran majlis, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. My respectable people, before going to say something, let's recite Durood Sharif on our Prophet Muhammad, peace be upon him. Recite Durood Sharif. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin ma'adal judi wal karam wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Salatu wa salamun alayka ya Rasulallah, ya Habiballah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین. سبحان اللہ بولے. کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتے تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین. اور ملت اسلام کو ملتا ہے درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین. کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین. اور حال میرا کچھ بھی ہو، ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہے، بدکار ہے، کچھ بھی ہو، حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین. بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین. اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو. کہے سبحان اللہ. تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو. توجہ چاہوں گا، ہمارا اسلامی مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے. پہلا مہینہ میرے امام حسین نے وہ عظیم قربانی پیش کی ہے جنہیں دنیا کل بھی یاد کرتی تھی، آج بھی یاد کر رہی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یاد کرتی ہے. اور آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے، اسے بھی دنیا کل بھی یاد کرتی تھی، آج بھی یاد کر رہی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یاد کرتی رہے گی. تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو. تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو. وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین. وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین.
दोबारा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आप हजरात मुझसे पेशतर आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना ज़हीर अहमद साहब से बहुत ही अच्छे अंदाज में अहले बैत पाक का तज़किरा सुन रहे थे। हजरात, मुझसे पेशतर शायर इस्लाम जनाब मौलाना शाह आलम साहब मुजाहिदी से भी आप हजरात नातो मनकबत समाअत किए। थोड़ी देर के लिए मुझे भी सुन लें, इसलिए कि जैसे कि हजरत ने बयान किया, मैं आपका मेहमान हूँ, मेहमान की मेहमान नवाजी होनी चाहिए। बस ज़्यादा देर नहीं लूँगा मैं, बस 20-25 मिनट आधा घंटे के अंदर ही ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि आप हजरात समझ रहे हैं कि उधर जो लंगर है इंतज़ार कर रहा है। तो खैर, आप हजरात कुछ देर जो है मेरे लिए सब्र करें। इंशाअल्लाह आप हजरात को फिर किसी दूसरे मौके पे आप हजरात को बयान करूँगा। तो हजरात मोहतरम, मैं आप हजरात के सामने जो आयत करीमा पेश किया बहुत ही पॉपुलर है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। क्या तर्जमा है, मीनिंग क्या है? डू नॉट कॉल डाई who's shaheed in the way of Allah, who's shaheed in the way of Allah, he is alive. Oh my people, you don't understand his life. जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है। लोगों, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। ओके, थोड़ा सा ये हो रहा है, खैर टॉकिंग में ऐसा होता है। तो हजरात मोहतरम, मैं आप हजरात के आपसे भी बात बयान करूंगा। मैं तो कमरे में जाएंगे तो अच्छा बात होगी। तो हजरात थोड़ी देर मेरे लिए आप हजरात सब्र करें। और मैं बीच बीच में इसलिए बोलता हूँ, आजकल हमारे मदरसा में ऐसा माशरा हो गया है, ऐसा मामला हो गया है। आजकल हमारे लोग ऐसे हैं, हमारे मुसलमान ऐसे हैं जो मदरसा में पढ़ाने को गवारा नहीं करते हैं। और वो यही कहते हैं कि वो लोग जो है दीनी इल्म से तो आरास्ता फहरास्ता हो जाते हैं, लेकिन दुनियावी इल्म से कोरे रहते हैं। लेकिन नहीं, आज आप जाके देखें अल-जामिअतुल अशरफिया में, आज दारुल मुजाहिदीन मिल्लत ही में जाके देख लें, आज बड़े बड़े मदारिस में जाके देख लें, जहाँ दुनियावी तालीम होती है वहीं पर दीनी तालीम से भी आरास्ता और पैरास्ता किया जाता है। तो ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ताकि आप हजरात के जहन से ये बात खत्म हो जाए, ये बात खत्म हो जाए कि मदरसा में, मदारिस इस्लामिया में सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ाई जाती है। जहाँ कुरान और हदीस की तालीम होती है वहीं पर असली तालीम भी हुआ करती है, वहीं पर दुनियावी तालीम भी हुआ करती है। आए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप अपने बच्चे को मदरसा पढ़ाए, कोई जरूरी नहीं है आलिम बनने के बाद इमामत करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है आलिम बनने के बाद मदरसे में पढ़ाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। बल्कि आलिम बनने के बाद वो अपना तिजारत करे, बिजनेस करे, कारोबार करे। अरे किताबों में तो बात ये आई है कि ताजिरों का हश्र मैदान महशर में अंबिया के साथ होगा, अंबिया के साथ होगा। कौन कहता है तिजारत करना गलत है? कौन कहता है मना है? आए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बात आई थी तो मैं बता दिया। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, वो जिंदा है। आए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपको कहना चाहूंगा, एक इंसान का हाथ कट जाता है, एक इंसान का पैर कट जाता है, एक इंसान का बाजू अलग हो जाता है। अब आप कहेंगे, आप डॉक्टर से पूछें, आप हॉस्पिटल में जाके पूछें, आप इंजीनियर से जाके पूछें, आप मेडिकल साइंस से पूछें कि एक इंसान का हाथ कट गया है, वो जिंदा है या मुर्दा, तो वो यही कहेगा मुर्दा है, यही कहेगा मुर्दा है। लेकिन आप उसके अपोजिट कुरान से पूछे, इस्लाम से पूछे कि एक इंसान का हाथ कट गया है, सर अलग हो गया है, गर्दन कट गई है, बाजू अलग हो गया है, पैर कट गया है, वो जिंदा है या मुर्दा, तो वो कहेगा दिल हो या ना हो, हाथ हो या ना हो, जिस्म हो या ना हो, जान हो या ना हो, अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो सब कुछ जिंदा है, अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है तो
हाथ पैर रहने के बावजूद चलता फिरता मुर्दा है। बात समझ में नहीं आई। आए बैठा के मुसलमानों, सुनो सुनो और आगे बढ़ता हूँ। अबू जहल के बारे में सुना होगा। अबू जहल कौन है आपको बखूबी मालूम है, सुना होगा। मेरे प्यारे आका ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, मुझको नबी मान ले, अल्लाह को एक मान ले। सारी बात समझाने के बावजूद वो अबू जहल नहीं माना। अबू जहल इनकार कर दिया। उधर जिब्रील अमी हाजिर खिदमत होते हैं, या रसूल अल्लाह ये आपकी बात नहीं मानेंगे, ये मुर्दा है। क्यों? परवरदिगार आलम ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतु व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों में बदबख्त की महक डाल दी है और उनके आंख और कानों में पर्दा डाल दी है। ऐ लोगों, मैं आपको कहना चाहूंगा वो मुर्दा है। अब आप बताएं, क्या अबू जहल के पास हाथ नहीं था? क्या अबू जहल के पास पैर नहीं था? क्या अबू जहल के पास आंखें नहीं थी? क्या अबू जहल के पास सर नहीं था? उसके बावजूद कुरान कहता है अबू जहल मुर्दा है, इस्लाम कहता है अबू जहल मुर्दा है। लेकिन उसके बरअक्स करबला की तारीख पढ़ने को मिलता है, तो एक देखने को मिलना है अब्बास अलमबरदार का हाथ कट गया है, कुरान कहता है जिंदा है। अली असगर के हुक्म पे तीर चल चुके हैं, कुरान कहता है जिंदा है। 18 साल के नौजवान अली अकबर शहीद हो गया है, कुरान कहता है जिंदा है। करबला में 72 शहीद हो गए हैं, इमाम हुसैन शहीद हो गए हैं। सर कहीं और है, जिस्म कहीं और है, कुरान कहता है करबला वाले जिंदा है। माजरा समझ में नहीं आया, बात समझ में नहीं आई। इधर अबू जहल के पास सर से लेकर पैर तक तमाम चीजें मौजूद है, उसके बावजूद कुरान कहता है अबू जहल मुर्दा है, कुरान कहता है अबू लहब मुर्दा है। लेकिन जब करबला की तारीख पढ़ते हैं तो कुरान कहता है करबला वाले जिंदा है। अब बात समझ में आ गई है। ऐ कैचा के मुसलमानों, मामला ये है कि अबू जहल और उसके मानने वालों ने गद्दारी मुस्तफा जाने रहमत से गद्दारी करने की वजह से तुम्हें जीने नहीं दिया। और ऐ हुसैनियो, मोहब्बत मुस्तफा में तुम्हें कभी मरने नहीं दिया। क्या बात समझ में आई? मामला यही समझ में आया कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करेगा, ये जान है इश्क़ मुस्तफा। आला हजरत फरमाते हैं रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अब आप कहेंगे कि ये आला हजरत का शेर है। आओ मैं आपको और आगे बढ़ाता हूँ, जिसको वो लोग भी मानता है गुस्ताखे रसूल। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह नाम सुने हैं, जो अपने जमाने के मुजद्दिद भी गुजरे और बहुत बड़े मुफस्सिर है। तकरीबन 600-700 किताबें लिखे हैं हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह। वो अपनी किताब अल-हावी में तहरीर फरमाते हैं, फी हालतिल बूदी रूहे कुंतु उर्सलहा तुकब्बिलुल अर्द अन्नी वहिया नाइबती कद हजरत हमदुद यमीन का कई तखत्ता शफती। 555 हिजरी की बात है। ऐ प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं 555 हिजरी की बात है जब हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई वो यानी घर में थे, जब जिस्म के साथ थे तो रूह को भेजा करते थे। कहाँ? गुम्बदे खजरा में भेजा करते थे और वो रूह आके प्यारे मुस्तफा के कब्र अनवर का बोसा लिया करती थी। कहे सुभान अल्लाह। प्यारे अनवर के, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस का बोसा लिया करती थी। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उसके बाद हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई मज़ार शरीफ के करीब आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जब दूर था तो मेरी रूह को भेजा करता था, वो आके बोसा लिया करती थी। या रसूल अल्लाह, अब मैं पूरे बॉडी के साथ हाजिर हो गया हूँ, पूरे जिस्म के साथ हाजिर हो गया हूँ। या रसूल अल्लाह, आप अपने हाथ मुबारक को बाहर निकालें ताकि मेरा होठ आपका बोसा दे। कहे सुभान अल्लाह। मेरा होठ आपका बोसा दे। हजरत मोहतरम तारीख गवाह है, हजरत अल्लामा अहमद कबीर रिफाई ने हजरत मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
वसल्लम अपना हाथ मुबारक मज़ार शरीफ से बाहर निकाले, तुर्बत अनवर से बाहर निकाले, हजरत अल्लामा सैयद अहमद कबीर रिफाई बोझा ले लेते हैं। सुभान अल्लाह। अब मैं कहना चाहूँगा मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब हजरत सैयद अहमद कबीर जब घर में थे, अपने घर में थे, तो रूह को भेजा करते थे गुंबद खदरा में, वो आके बोझा लिया करती थी। जब रूह को भेज दिए तो इधर बचा क्या? इधर बचा बॉडी, है ना, बॉडी बचा। जब रूह को भेज दिए तो बॉडी बचा। मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी किताबों में बात मौजूद है, फतावा रज़विया में बात मौजूद है, आप खोल के देखें। भाई मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब वहां पर बॉडी बचा और रूह को भेज दिए तो यकीन जानिए ये रूह बगैर बॉडी के जिंदा रही कैसे? जिंदा रही कैसे? जब जहन कंफ्यूज हुआ तो बरेली से आवाज आता है कि जिस्म हो या ना हो, जान हो या ना हो, रूह हो या ना हो, अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो सब कुछ जिंदा है। तभी तो फरमाते हैं जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, अरे जिसको है दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। जान है इश्क़े मुस्तफा। अगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रहेगी, चाहे वो जिस्म कर जाए, चाहे वो हाथ कर जाए, लेकिन उसके बावजूद जिंदा है। ये मैं नहीं, कुरान फरमा रहा है, कुरान कह रहा है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान तो वो शान है, ज़ाते हुसैन पे तबसरा करने वालों और सुनने वालों, जरा नामे हुसैन पे भी तबसरा कर लिया। मेरे इमाम हुसैन की जात तो वो जात है, किताबें अगर देखी जाए, बुखारी हो, तिरमिजी हो, मुस्लिम हो, अबू दाऊद हो, चाहे जितनी हदीस की किताबें हो, सारी किताबों में इन्हीं दोनों शहजादों का जरूर तस्कीरा मिलता है। सुभान अल्लाह। इन्हीं दोनों शहजादों का जरूर तस्कीरा मिलता है। मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन का है। सुभान अल्लाह। यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन इज फ्रॉम मी एंड आई एम फ्रॉम हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो पता क्या चला, जो हुसैन का चाहने वाला होगा वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का चाहने वाला होगा, जो हुसैन का चाहने वाला नहीं होगा वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का चाहने वाला नहीं होगा। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आओ ज़ाते हुसैन पे तबसरा करने से पहले आओ नामे हुसैन पे तबसरा किया जाए। मेरे हुसैन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम पे वो बरकत है, उनके नाम पे तबसरा किया जाए। हुसैन में कितने लफ्ज है, कितने हुरूफ है, कितने? 4 है, हा सीन या नून। अरे ज़ाते हुसैन तो बहुत बड़ी बात है। आओ हुसैन के नाम पे तबसरा किया जाए। आए हुसैन तू ही बता, है नहीं, आए हवा तू ही बता कौन है हुसैन। ऐ पानी तू ही बता ये कौन है हुसैन। ऐ फिजा तू ही बता कौन है हुसैन। तो हुसैन के ये जो हाँ है वही जवाब देगा। हक वाला वो है हुसैन। बोले सुभान अल्लाह। हक वाला वो है हुसैन। आओ हुसैन के सीन से पूछते हैं, ऐ सोई तू ही बता कौन है हुसैन। तो हुसैन का सीन जवाब देगा, सजदे में सर को कटाने वाला वो है हुसैन। आओ हुसैन के या से पूछते हैं, ऐ या तू ही बता कौन है हुसैन। तो हुसैन का या जवाब देगा, यादे खुदा में मस्त रहने वाला वो है हुसैन। आओ अब हुसैन के नून से पूछते हैं, ऐ नून तू ही बता कौन है हुसैन। तो हुसैन का नून जवाब देगा, नाना की शरीयत को बचाने वाला वो है हुसैन। नाना की शरीयत को बचाने वाला वो है। ये मेरे इमाम हुसैन की जात है, मेरे इमाम हुसैन का नाम है, उसका ये तफसीरा। सुभान अल्लाह। जाते हुसैन मैं क्या बयान करूं, मेरी जुबान काफिर है, इतना कम वक्त में क्या बयान करूं। मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, मैं आपको बताया ना, सारी किताबों में इन्हीं दोनों शहजादों का तज़किरा ही मिलता है, इन्हीं दोनों शहजादों की फजीलतें मिलती हैं। और जितने अहले सुन्नत व जमात की किताबें हैं, सारी किताबों में यजीद के बारे में क्या मिलता है, यजीद के बारे में क्या खूबी मिलता है? नहीं, यजीद के बारे में वही लानत ही मिलता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों,
میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ میرے امام حسین ہے، سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کو دیکھنا ہو تو جمال مصطفیٰ میں نظر آ جاتا ہے، اسی طریقے سے جمال مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو حسنین کریمین کو دیکھ لو، جمال مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ جائے گا، کہے سبحان اللہ۔ جمال مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ جائے گا حضرات محترم، کیوں؟ اس لیے کہ ایک سر سے لے کر سینے تک مشابہ ہے اور ایک سینے سے لے کر پیر تک مشابہ ہے، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ایک سر سے لے کر سینے تک مشابہ اور ایک سینے سے لے کر پیر تک مشابہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کو کہنا چاہوں گا، جب صحابی رسول میرے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جمال مصطفیٰ کے دیدار کے لیے تڑپتے تھے تو انہی دونوں شہزادے کو کھڑا کر کے جمال مصطفیٰ کا نظارہ کر لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، نظارہ کر لیا کرتے تھے، اس لیے کہ ایک سر سے لے کر سینے تک مشابہ ہے اور ایک سینے سے لے کر پیر تک مشابہ ہے، اسی لیے تو فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین، اور تمثیل میں اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن، آدھے سے بنے حسین، آدھے سے بنے حسن، آدھے سے بنے حسین، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو میں محبت کی بنیاد پہ کہتا ہوں، جب نانا ہو سیدۃ الانبیاء، جب نامی ہو خدیجۃ الکبریٰ، جب باپ ہو سید الاولیاء، جب ماں ہو خاتون جنت، تو بیٹے پیدا ہوتے ہیں سید الشہداء، ارے نبی کا نور، علی کا خون، فاطمہ کا دودھ جب ایک جگہ مل جاتا ہے تو بنتے ہیں حسن، بنتے ہیں حسین۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اور آگے بڑھے امام حسین کی ذات، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ میرے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو گود میں لے کے محبت کر رہے تھے۔ توجہ چاہوں گا، زیادہ دیر نہیں بولوں گا، تھوڑا دیر سن لیجیے، اس لیے کہ کیا کریں گے، ماحول ہی ایسا بنا۔ ایک مرتبہ میں بہت دیر سے انتظار کرتا تھا کہ کب میری باری آئے، کب میری باری آئے، کب میری باری آئے، لیکن کیا کریں گے، بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے کرتے آتا، ایسا ماحول ہو گیا ہے۔ کیا حضرات سنیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بہت لوگ یہاں پر موجود ہیں تو توجہ چاہوں گا میرے امام حسین کی ذات، سنیں گے نا حضرات۔ ایک مرتبہ میرے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کے محبت کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا نام مخصوص ہے، معلوم ہے، میرے پیارے آقا کے بیٹے ہیں، جیسے کہ حضرت نے بتایا تھا آپ حضرات کو، اور ایک بازو پہ سرکار کے اپنے نواسے حضرت امام حسین کو گود میں لے کے محبت کر رہے ہیں، یعنی ایک بازو پہ سرکار کے اپنے شہزادے اور دوسرے بازو پہ سرکار کے اپنے نواسے امام حسین کو گود میں لے کے محبت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کبھی اپنے بیٹے سے محبت کر رہے ہیں، کبھی اپنے نواسے سے محبت کر رہے ہیں، یوں کہہ لیجیے کبھی اپنے بیٹے سے پیار کر رہے ہیں، کبھی اپنی بیٹی کے بیٹے سے پیار کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا دونوں شہزادے کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ پیارے آقا خوش ہے، پیارے آقا کو خوش دیکھ کر پورے مسکرا رہی ہے، پورے مسکرا رہے ہیں، فرشتے مسکرا رہے ہیں۔ اسی عالم وجدکیف میں حضرت جبریل امی حاضر ہو جاتے ہیں۔ کون؟ حضرت جبریل امی حاضر ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ اے بابو سن لو، اے بابو ادھر دیکھو، حضرت جبریل امی حاضر ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، جبریل کیا بات ہے، کیسے آئے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ رب نے بھیجا ہے، رب نے بھیجا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ نے بھیجا ہے۔ تو میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ دونوں بیٹے آپ کے پاس ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین
दोनों बेटे एक वक्त में आपके पास जमा नहीं हो सकते, एक को अल्लाह की बारगाह में वापस करनी है। तो हजरत मेरे प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बताओ जिब्रील किसे अल्लाह की बारगाह में वापस करनी है? तो हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी मर्जी पे छोड़ दिया गया, आपकी मर्जी पे छोड़ दिया गया। आप जिसे चाहे अल्लाह की बारगाह में वापस करें, चाहे आप अपने बेटे इब्राहिम को रब की बारगाह में वापस करें, चाहे आप अपने नवासे इमाम हुसैन को रब की बारगाह में वापस करें। तो मेरे प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने नवासे हुसैन को अल्लाह की बारगाह में वापस करके अपनी बेटी फातिमा का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे इब्राहिम को अल्लाह की बारगाह में वापस कर देता हूँ। चुनांचे उसके 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो जाता है, विसाल हो जाता है, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। उसके बाद जब मेरे प्यारे आका हजरत इमाम हुसैन को गोद में लेने के बाद मोहब्बत करते और चूमते सूंघते, तो इतने में इरशाद फरमाते कि मैं अपने नवासे, मैं अपने बेटे के, अपने नवासे के खातिर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, मैं अपने नवासे इमाम हुसैन के खातिर अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। तो यही सवाल जब आलम तसव्वुर ने इमाम हुसैन को, जब किताबों ने पूछा कि कल आपके नाना ने आपको बचाने के लिए अपने बच्चे यानी अपने बच्चे यानी आपके मामू को कुर्बान कर दिया था, ऐ मेरे बच्चा के मुसलमानों सुनो सुनो, मेरे इमाम हुसैन ने वो तारीखी जवाब इरशाद फरमाया था कि कल हो गए मेरे नाना ने मुझे बचाने के लिए अपने बच्चे यानी मेरे मामू को कुर्बान कर दिया। आज मैं अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मैदान करबला में अपनी गर्दन कटवा दूंगा, अपने बच्चों की गर्दन कटवा दूंगा, अपने भतीजों की गर्दन कटवा दूंगा, अपने भांजों की गर्दन कटवा दूंगा। आखिर में अपनी गर्दन को कटवा के मेरे नाना के दीन को बचाऊंगा, आखिर में अपनी गर्दन कटवा के मेरे नाना के दीन को बचाऊंगा। हुआ भी ऐसा, मेरे इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटवा के ऐसा दीन बचाया है तो आज तक वो दीन बरकरार है, आज तक बरकरार है। जानते हैं ये जो हमारे आप नजर आ रहे हैं मुसलमान, इमाम हुसैन का सदका है, इमाम हुसैन का सदका है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर मैदान करबला में अगर अपने गर्दन को ना कटवाते, अगर यजीद के हाथ में हाथ दे देते तो क्या होता? यजीद क्या था? शराबी था। यजीद क्या करता था? नाचता था। यजीद क्या करता था? गाना गाता था। उसके महलों में औरतें आती थी, लड़कियां आती थी, उसको शराब पिलाया करती थी, वो नाचता था, ढोल बजाता था, रश किया करता था। उसके महलों में ये फाहिशा औरतें आती थी, नाचा करती थी। तो मेरे इमाम हुसैन ने यजीद को नहीं मिटाया। अरे यजीद को अगर मिटाना होता तो ये 22,000 का लश्कर इमाम हुसैन के लिए कुछ नहीं है। अरे ये तो इमाम हुसैन का मर्तबा, वो तो नवासे रसूल है। और इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे जिन्हें अताउर रसूल फिल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है, जैसा कि आप हजरात ने हजरत मुफ्ती हबीबुर रहमान से सुना है, वो ख्वाजा गरीब नवाज किससे सुने थे? आप हजरात ने सुने थे? हाँ, हजरत अल्लामा ज़हीरुद्दीन साहब से सुने थे। तो मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात तो बहुत बड़ी है, उनके बेटे के बेटे के बेटे मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का ये आलम है, उसका ये ताकत है कि पूरे अना सागर को जब कांसे में ले सकते थे तो मेरे इमाम हुसैन अगर चाहते तो ये 22,000 का लश्कर, ये जो पानी बंद कर दिया गया था, नहरे फुरात को बंद कर दिया गया था, अगर वो चाहते तो नहरे फुरात को कब्जे में क्या नहीं ले सकते थे? अरे मेरे इमाम हुसैन तो बहुत बड़ी बात है, उनके बेटे के बेटे जो ख्वाजा गरीब नवाज है, जब उनका ये पावर है तो वो तो नवासा रसूल है, उनके पावर का अंदाजा कौन लगा सकता है? अगर चाहते तो ये 22,000 का लश्कर मेरे इमाम हुसैन के लिए कुछ नहीं था, बल्कि 2 मिनट भी नहीं जाता खत्म कर सकते थे। लेकिन ये इम्तिहान था, इम्तिहान था। मेरे इमाम हुसैन ने उन तमाशों को बंद कराया है, उन गानों को बंद कराने के लिए मैदान करबला में लड़े हैं, उन नाचों को बंद कराने के लिए मैदान करबला में अपनी गर्दन, अपने भाइयों की गर्दन, अपने भतीजों की गर्दन, अपने भांजों की गर्दन, अपने चचों की गर्दन को
पिटवा के ये साबित कर दिया है। अबे सुन यजीद, मरते हक बातिल की आगे माथ खा सकता नहीं। अरे सर तो कटा सकता है लेकिन सर झुका, मरते हक बातिल के आगे माथ खा सकता नहीं, सर कटा सकता लेकिन सर झुका सकता नहीं। वो मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जितने भी तज़किरा किया जाए फिर भी कम है, क्योंकि ये सुनने का माहौल नहीं है। मैं आप अंदाज को मैं समझ गया हूँ, किसी और मौके पे जरूर गुफ्तगू होगी। और ये मैं आपको ये भी बता दूं, ये मेरा मशगला ये तकरीर करना सिर्फ नहीं है, बल्कि मेरा फास्ट मशगला जो है वो पढ़ना पढ़ाना है। मैं एक जिम्मेदार टीचर हूँ, जिम्मेदार उस्ताद की हैसियत से जामिया हुसैनिया करामतिया जो जलिस्तान में है वहाँ पर तालीम देता हूँ। और सबसे अहम काम वही है, ये तकरीर करना ये तो है ही है, लेकिन इतना ये ज़्यादा मशगला नहीं है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अच्छा आप बताएं तो यजीद से पहले बहुत बुजुर्गों का नाम यजीद था, समझ गया हूँ। यजीद से पहले बुजुर्ग माने यजीद के इस कारनामा से पहले बहुत सारे नेक लोगों का नाम यजीद था, लेकिन जब से यजीद कमीना ऐसा काम किया है उसके बाद से लोग यजीद नाम रखना ही बंद कर दिया। लेकिन वाह मेरे इमाम हुसैन की शान, हमारे इमाम हुसैन की ज़ात तो बहुत बड़ी है। इमाम हुसैन के नाम की ये बरकत है कि आज जहाँ देखो इमाम हुसैन के नाम से नाम रखा जा रहा है। किसी का नाम साबिर हुसैन है, किसी का नाम गुलाम हुसैन है, किसी का नाम अहमद हुसैन है, किसी का नाम मोहम्मद हुसैन है। सुभान अल्लाह, यजीद ने ऐसा काम किया है, अरे उसका नाम बिल्कुल दफन कर दिया गया है। नाम पे नाम रखना दफन कर दिया गया है, लेकिन मेरे इमाम हुसैन की ज़ात वो है, मेरे इमाम हुसैन का नाम वो है। आज जहां देखो इमाम हुसैन के गुलाम, ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। तभी तो हम और आप इमाम हुसैन के नाम से लंगर लुटा रहे हैं। ये भी तो इमाम हुसैन के हैं, गुलामी का हम और आप इकरार कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अच्छा दिल में एक हाथ रख के आप हज़रात बताए तो हम और आप यजीद के नाम पे नाम रखना अपने बच्चे को पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो जब यजीद का नाम इतना खराब है, यजीद जब से ऐसा काम किया है, हम और आप नाम रखना पसंद नहीं करेंगे, तो यजीद आना किरदार हम और आप कैसे निभा रहे हैं? यजीद क्या करता था? शराब पीता था, पिलाता था, ढोल बजाता था, बजवाता था, है उसके महलों में वगैरह वगैरह आती थी। यजीद ये तमाम बुराइयां क्या करता था? तो हम और आप यजीद आना किरदार निभाते हैं। दारा ऐसा हरगिज नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से हम और आप यजीद से नफरत करते हैं, उसके तमाम कौलों फेल से नफरत करें, तब जाके हम और आप इमाम हुसैन के चाहने वाले होंगे, तब जाके इमाम हुसैन के पक्का दीवाने, बस 2 मिनट, तब जाके चाहने वाले होंगे। तब कल जाके जब हम लोग जाएंगे तो कयामत के मैदान में हम जब जाएंगे 2 ग्रुप होगा, एक यजीदियों का, एक हुसैनियों का। तो बताओ, अगर कोई ढोल बजाने वाला होगा, शराब पीने पिलाने वाला होगा, तो बताओ इमाम हुसैन किस लिस्ट में शामिल करेंगे? अपने लिस्ट में या यजीदी लिस्ट में? तो खुदारा ऐसा नहीं हरगिज़ होनी चाहिए। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जिस तरीके से हम और आप इमाम हुसैन की याद मना रहे हैं, उसी तरीके से इमाम हुसैन के हर कौल व फेल को अपनाना होगा, इमाम हुसैन के नाना के तरीके को अपनाना होगा, तब जाके हम और आप पक्का हुसैनी कहलाएंगे। और इंशाअल्लाह हम और आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके इमाम हुसैन के सदके जन्नत नसीब फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि कहने में किसी भी किस्म की गलती हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, मेरी तौबा को कबूल अता फरमा। इंशाअल्लाह फिर कभी अगर मुलाकात होगी आप हज़रात के सामने भी तफसील बयान करूँगा। इसी पे अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद मुसलमानाने बेचा पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
وفا